Good morning, boys and girls. Once again, we have Brigadier Sarvesh Dangwal, Vishesh Seva Medal with us. And today he is going to speak to us a little bit about the 1962 war. So a little bit about the 1962 war. This was a big physical and moral defeat for a newly independent India. There is a good thing about defeat, and that is it teaches good lessons. Thus, India did a fairly good job against a much better equipped Pakistan in the 1965 war. The war is not well understood in India because till date we have not made public a report which was prepared by General Henderson Brooks for whatever reasons. From the perspective of magnitude, the war was not much. 3 divisions of India and 6 divisions of China were involved. The air forces and navies were not involved at all. There was no official declaration of the war. The war began when China attacked us on 20th October and they unilaterally declared a ceasefire on 21st November. The aim of the Chinese aggression, as stated by them, was somewhat strange from the perspective of military history, that it was to teach India a lesson. China was in the possession of Aksai Chin region in Ladakh and had constructed a road connecting Xinjiang and Tibet in the area. In India's erstwhile Nifa, present Arunachal Pradesh, Chinese forces occupied considerable land, but post the announcement of the unilateral ceasefire, the forces withdrew to the pre-war status and returned all prisoners of war as well as Indian weapon and equipment. These gains were not used in negotiations by China. The border with China remains unresolved till date. Deng famously said in his talks with Prime Minister Rajiv in December 88 that let us leave this to a generation with greater wisdom. Now, Jinping of the later generation has now evolved his policy of salami slicing, from which we suffered in Galwan in 2020. For outstanding bravery in the 62 war, Major Shaitan Singh of 13 Kumaon, Major D.S. Thapa of 1st Aid GR, and Subedar Joginder Singh of 1st Sikh received the Paramveer Chakra in the 62 war. There were also some victors of the Mahavir Chakra. Prominent among them was Rifleman Jaswant Singh of 4 Garhwal Rifle in the Battle of Nooranan, the battalion in which Brigadier Dangwal was commissioned. Jaswantgarh has a good war memorial built. It is a regular tea break halt for army convoy. I served in the region in 2000-2002 and visited the memorial on numerous occasions. In May 2000, I represented the Indian delegation in talks with the People's Liberation Army at Bumla, where Subedar Joginder Singh had received the Paramveer Chakra. A movie was made in 2019 on Rifleman Jaswant by the name 72 Hours, Martyr Who Never Died. Brigadier Dangwal sir will share his perspective of the battle as well as the war in brief. As I told you earlier, sir has been a sports and fitness enthusiast since school days and continues to be so today. So he will share his views on this war a little bit, as also the importance of physical fitness in life in general, as also for the defense aspirants. He will be answering the questions we have received from you all already, as also any other questions that you may have after listening to. I now request sir to please take over
To maintain the flow on behalf of the attendees, I will keep raising queries to aid comprehension. Over to you, sir, please. Thank you, Colonel Nehru, and boys and girls who are connected in this Zoom session on the Battle of Nuranang and fitness in general. Colonel Nehru has given you a prelude or a background to the battle, the 1962 Sino-India conflict. As most of you are aware, this complete thing is still very, very complex because we have our side of the story to tell, we have our perceptions, and the Chinese, no matter how much we may detest it, how much we may hate it, but the fact is that there has been so much of confusion which has been created insofar as the demarcation or the delineation of the boundary with Tibet, which of course is now an autonomous region and has complete control by the People's Republic of China. And the history of Tibet, if you read it, on and off, it has been a suzerainty of the Chinese who consider it to be a part of their mainland China. So they historically and as a matter of legacy, they consider it to be a part of their own. But when during the days of the British Empire, when the East India Company came to India, and thereafter India came under the British Empire after the First War of Independence, which was fought in 1857, which by the Britishers is termed as the Mutiny of 1857. So thereafter, China, the British Empire actually wanted Tibet to be a buffer between India and China, right? So that is how it was. And we had our presence in China. There were outposts which were there in Tibet, maintained by the British Army, because essentially it was to protect the trade or the commerce route. As you understand that we are economy stupid, meaning thereby that it's so very essential that trade is what sustains or it essentially matters when it comes to the economic growth of countries. Today, in the century in which we are living, India is a huge market for international companies. That is the reason as to why we essentially have so much of prominence insofar as global trade is concerned, and so many people and so many countries are wanting to do trade with us. So similarly, at that point in time also, there was a traditional trade route which was there between Tibet, and in fact, when Huensang and Fahen, during the period of Chandragupta Maurya or Emperor Ashok, when they came through this route. They came through from China, came from Tibet, and came to India. Anyhow, that is part of history. All that I wanted to tell you is, since we are not covering the Sino-Indian 1962 conflict as such, but I'm going to essentially focus on the Battle of Nuranang, which was a part of this complete conflict of 1962, which was fought in Leh Ladakh. Essentially, he's made a mention of Razangla. So this is in Chashul, and we had an airfield in Chashul, and therefore the Battle of Razangla essentially was to defend the airfield in Chashul, because if Chashul had been captured, then the gateway to Ladakh would have opened up.
to the Chinese. So that is exactly what the thinking was at that point in time. And if we wanted to defend Eastern Ladakh, then it was important for us to retain control of the airfield. So this was actually the battle, the Sino-Indian conflict was in three major areas. One, Eastern Ladakh, the Battle of Ridangla, where 13 Kumaon fought, and Major Shaitan Singh, he was decorated posthumously with the Paramveer Chakra, a gallant action fought by 13 Kumaon, the Charlie Company of 13 Kumaon. It was one company action actually at that point in time. The second was in this area, the Kaming sector. Of course, in Arunachal Pradesh, earlier it was known as the Northeast Frontier Agency. And further east and to the south, the Walong sector in Arunachal Pradesh. So these were the three large or broad areas in which the Chinese essentially had made ingress and had crossed the boundary as we understood it to be, and therefore had attacked India. There were many reasons for it. Our perception was the McMahon line was there. Then we had the other boundary which was there, which was established by the British surveyors, which was not agreed to. There was a treaty of Shimla Treaty, the famous Shimla Treaty of 1914, which was held between the Chinese, the Tibetans, and the British. The Chinese did not agree to it. However, it was signed by the Tibetan representative, but China said that it was done under duress, it was done unfairly, we were cheated of it. So all these things created a lot of confusion. We became independent in 1947. China got independence or China became a People's Republic of China, because earlier, as you know, it was essentially with the Kuomintang party. There was a party which was there with, it had not become a People's Republic. It became a People's Republic only in 1949 as part of the communist movement, where the people, they seized power from the dispensation which was running China or governing China at that point in time. That was Chiang Kai-shek. I'm sure you must be aware of this name. So it was better for India because when we became independent, Panditji, as a matter of our foreign policy, had subscribed for a policy of non-alignment, because the world was largely divided after the Second World War into two major power blocks, the Western power and the communists. The Westerners essentially were capitalists insofar as their ideology was concerned, and the other powers together were communist in their ideology. So we wanted good relations with everyone. We said we will neither belong to the bloc of the communists or to the bloc of the communists or the bloc of the capitalists, but will continue to remain as a non-aligned country. And that was the building up process for India. There was hardly any presence of the Indian Army. In fact, the frontier, as it was known, Northeast Frontier Agency, NEFA, that is how the area was known. The entire area of Arunachal, which has a border with Tibet, right? Of course, Tibet is now a part of China. It's an autonomous region, but a part of the Chinese mainland. And we had the Assam Rifles deployed over there. I think there were about 43 to 44 Assam Rifle posts, which were scattered all over. And these posts essentially were to carry out surveillance. They were posts which were not meant to give battle to anyone who was ingressing into our area, but essentially as a surveillance, and they were controlled by the Home Ministry and the Ministry of Foreign Affairs.
these Assam rifle posts. That is how it was. So it was only after China had occupied Aksai Chin, and like Colonel Nehru made a mention to you, that this famous road, the highway, which they call, I think, GH218, this was linking the Xinjiang province of China with Lhasa, that is in Tibet. This was very important for the Chinese, and slowly they started constructing it. And when they had completed the road, and we got to know about it, there was a hue and cry which was raised in the parliament that how has it happened? How have the Chinese taken Aksai Chin, which was considered to be a part of the Indian Union? We considered it to be 38,000 kilometers, square kilometers of area. Of course, there nothing, not even a blade of grass grows there, right? So it's a desert of stones, white stones. That is what Aksai Chin essentially means, a desert of white stones. And this road was very important strategically to China because it linked up one province of their Xinjiang province. Because, you must understand the terrain or the topography of Tibet. Tibet is a very, very harsh piece of what should I say, land. Very, very harsh piece of land. And there are ridges which are running from east to west. And there are about 3 to 4 ridges which are running. So if you are coming from China and you want to come to the western part of Tibet, you really have to go through lots of difficult terrain. So the better way of accessing it is going around, coming from South Tibet and then thereafter accessing Western Tibet. So this road was very important. And when a hue and cry was raised in the parliament in 1959, at that point in time, Brigadier Bhagat was the director of military intelligence. And one day he informed the chief, who was General Thimaya. He said, "Sir, the Prime Minister Pandit Nehru has said that now the army is going to get deployed and they are going to be entrusted and made responsible for the defense of the boundary in Arunachal Pradesh, in Nefa." So the responsibility shifted from the Assam Rifles to the Indian Army. Now, we were a very small army actually at that point in time, not very well organized. In fact, the political leadership of the country at that point in time thought that, well, because of our diplomacy, because of our foreign policy, and like I made a mention to you, because of our non-aligned stance, we need not to worry and not have any enmity with anyone, and we would not have any inimical relations with anyone. In fact, it was on the basis of that only that the Panchsheel Agreement was signed between Mao Zedong and Pandit Nehru, and wherein we had said that we are not going to attack each other's territory or country. But notwithstanding that, when there was a hue and cry, every government which is in power has to get some mileage, political mileage, from whatever they do. So there was, at that point in time, the Intelligence Bureau, which was headed by one Mr. B.N. Malik. Mr. B.N. Malik then had a very, very long stint ever since independence. And I think he remained as the Director of Intelligence for good about 20 years and was in total command of everything. So he, as a Director of the Intelligence Bureau, prevailed upon the political leadership and the Defense Ministry, the bureaucracy in the Defense Ministry, that the army should be made responsible. Now, General Thimaya was the chief. He said, we don't have the resources. So it was a very, very hurried sort of a thing. There was just one brigade, 7 Brigade, which was there, which was looking after this entire area. And there was another brigade. In fact, in the Ladakh area, there were
two militia battalions. Two militia battalions, and then thereafter there was one regular battalion which was inducted over there, looking from the entire area of Daulat Beg Oldie right down to Demchok and to Depsang, right? So the frontiers were huge. The lines of communication were not there, roads were not there, logistics was a big nightmare for anyone. And, the only thing which we were sort of confident about was that there may be a little bit of arm flexing, but the People's Republic of China would not get serious and get into battle with us. All throughout, we were under this impression. And then what happened is that within the Indian Army also, there was a personality by the name of Lieutenant General Big Col, BM Col. And General Big Col, a very, very sort of a bright and a very sharp person with tremendous administrative and managerial abilities, was, by virtue of his relations and his, proximity, or what should I say, closeness to Panditji and to Krishna Menon, because he was very good. And the general impression which was there in the country at that point in time was that we don't require an army, and as far as the army is concerned, it's a burden on the exchequer, and it is it is something which has been thrust upon us by the British. And their concept was, their understanding was that a police was good enough to look after the state affairs of the country. So that was the political thinking at that point in time. You can't fault anyone for it. My point is, in hindsight, we may analyze it, but at that point in time, because of the diplomacy, you see, army or the military comes into action only when diplomacy fails. And they were very confident in their diplomacy that the only enemy we have to really worry about is the enemy on our western borders, because the 1947-48 invasion of Kashmir had happened by the Pakistani Qabilis, who were assisted by the Pakistani army. And as far as China is concerned, it was never considered a threat. It was never considered a threat. We thought we had various dialogues, we had various engagements, 1956, 1957, 59, 60 with the Chinese. The Panchsheel Agreement got signed. And when we discussed the matter of Aksai Chin with China, China said, listen, this is our claim line, the 1959 claim line. This is where the border stands. And this area, it doesn't belong to you. It belongs to us. It's not a part of you. So maps were not very accurate. Maps were made on the perceptions which were there with the people. They did not respect the maps which were made by the Britishers, because they said the Britishers had no genuine interest, because they were not there to stay. So they drew a line wherever they wanted to. And therefore, on a quarter-inch map, a pencil line, which is, 1/100th of a millimeter thick, that covers the area of approximately about 60, 70, 80 miles in a quarter-inch map. So this line really is meaningless. You say this is yours, we say this is ours. So this is what the scenario was. So in fact, in 1956, Mao Zedong had made an offer also, to Panditji, and subsequently repeated that offer in 1959 also, that look, let's settle this between ourselves. We will accede to you the entire area of Arunachal. We'll have no claims in the entire area of Arunachal, right? Which is the central area, the northern area, and the southern area of Arunachal. That means right from Walong up to Nefa, and thereafter UP, where is the Barahoti area, right? And Himachal Pradesh area. So where all the Tibetan border with India stands,
that is the area I'm talking about. So they said, let's have a trade-off. आप जो है वो अक्साई चीन जो है उसको हमको एक्सीड कर दीजिए, और हम जो है वो पूरा का पूरा जो हमारा क्लेम जो हम अभी अरुणाचल के ऊपर, तवांग के ऊपर जो हम अपना क्लेम रख रहे हैं, उससे हाथ धो देंगे. We'll agree to it. But Panditji didn't agree to it because there were political pressures. They said not an inch of land shall be given away. That is what politics is all about. And the opposition party in a democracy, this is what happens. So when this matter came up over there, so I remember at that point in time when Panditji said, look, how does it matter? अक्साई चिट में तो एक ग्रास ऑफ ब्लेड भी नहीं होता है, तो उसको जो है दे देते हैं. हाउ डज इट मैटर? एटलीस्ट वी सेटल दी बॉर्डर्स इन अरुणाचल प्रदेश और अर्स्टवाइल नेफा. तो उस समय जो है वहां पे एक, मुझे भी याद है, एक एमपी होते थे, एंड ही वाज फ्रॉम उत्तर प्रदेश ओनली, फ्रॉम देहरादून, एंड हिज नेम वाज मिस्टर त्यागी. तो मिस्टर त्यागी ने उस समय जो है फिर पार्लियामेंट के डिबेट में, ये बड़ा फेमस कोट है उनका, ये कहा कि पंडित जी मेरा जो सर है उसमें एक भी बाल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा सर काट करके जो है आप जो है किसी को दे देंगे कि मेरे सर के ऊपर कोई बाल नहीं है. तो दैट वाज द टाइप ऑफ लॉजिक और द डिबेट व्हिच हैड टेकन प्लेस. सो what I am trying to imply, what I am trying to essentially put across to you is that the opposition was not in favor of this trade-off at that point in time when the proposal was made. तो डेमोक्रेसी में आपको पब्लिक व्यूज को रिस्पेक्ट करना पड़ता है. Otherwise, Panditji would have been out of government in the next elections. That is the type of sentiment, that is the type of emotion which is there with a piece of land. ये भावनात्मक चीज है कि हम अपने देश का 1 इंच जो है किसी को नहीं देंगे, ये हमारी मातृभूमि है. It's all a question of emotions and sentiments, and this is exactly what is put to use. Politics में जो है वो जनता की भावनाओं को जो है, सच्चाई के अलावा भावनाओं को भी जो है, और हम लोग बड़े भावनात्मक लोग हैं, आप सब जानते हैं, वी आर वेरी इमोशनल पीपल. So anyhow, now coming to this particular thing about the battle which was joined on the 20th of October. तो 20th of October में क्या था कि there was, prior to that, there was a forward policy which was essentially the brainchild of the Director of Intelligence, Mr. Malik. तो उन्होंने कहा कि हम साहब अपनी पोस्ट को जो है वो जितना आगे ले जा सकते हैं तिब्बत के बॉर्डर के साथ, उसको हम वहां ले जाएंगे, एंड लेट्स सी व्हाट द चाइनीज डू. तो देयर वर मेनी एरियाज. तो एक पोस्ट थी, उसका नाम था धोला पोस्ट. दिस वाज इन द एरिया ऑफ थागला रिज, एंड देयर इज अ रिवर बाय द नेम ऑफ नामकाचू व्हिच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, और थागला रिज थी वहां पे. उस एरिया में हमने जो है एक असम राइफल की पोस्ट थी, ये धोला पोस्ट. तो इस असम राइफल की पोस्ट को जो है हमने इसको स्ट्रेंथन किया. एज आई टोल्ड यू दैट दे सब्सिक्वेंटली विड्रू फ्रॉम देयर एंड इट बिकेम अ पोस्ट व्हिच वाज हेल्ड बाय द आर्मी, और इट वाज स्ट्रेंथन्ड, reinforced by the army. Now the Chinese objected to it. They said इसको आप पीछे ले जाइए, ये गलत है, आप हमारी टेरिटरी में एनक्रोच कर रहे हैं. बट हमने ये कहा कि नहीं, ये तो धोला पोस्ट जो है ये हमेशा से हमारी रही है, हमारी असम राइफल की पोस्ट थी, हमने इसको सिर्फ रेनफोर्स ही करा है. तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या हो गया कि मसल फ्लेक्सिंग हो गई, एंड दिस इज व्हाट वाज नॉट टेकन वेरी लाइटली बाय द चाइनीज लीडरशिप. उनको पसंद नहीं आई बात. उस समय जो है मोरारजी देसाई भी थे गवर्नमेंट में, जब इनके पीस डेलीगेशन आते थे टॉक्स के वास्ते. आई बिलीव आई वाज गिवन टू अंडरस्टैंड एज यू रीड फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स कि मोरारजी भाई was rude to Mr. Mao Zedong also. We had Mr. Krishna Menon as our defense minister. We had Mr. B.N. Malik, जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे. तो आर्मी जो थी उसके पास ना तो रिसोर्सेस थे उस समय, ना उनके पास, क्योंकि they already had their hands full with the problems which were there on our western borders. और all of a sudden अभी ये responsibility, उस समय if I am not wrong, आर्मी की स्ट्रेंथ जो है 3.5 लाख थी. That's about all. About 3.5. That's all. तो
उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है वापस चले जाइए। तो देन in 1959 there was an incident which had happened in Longju. लॉन्गजू भी एक जगह थी अरुणाचल प्रदेश में, सुबनसरी डिवीजन में। अरुणाचल प्रदेश जो था, नेफा जो था, उसमें एक कामेंग डिवीजन था, एक सुबनसरी डिवीजन था। तो वहां पे लॉन्गजू एक पोस्ट थी, दैट वाज आल्सो असम राइफल पोस्ट। दैट पोस्ट आल्सो इन 1959 अगस्त में चाइनीज ने ये कहा कि साहब ये आप जो है यहाँ से चले जाइए, ये आपकी पोस्ट नहीं है, ये आप हमारे एरिया में इंग्रेस कर रहे हैं। तो इसको भी घेर दिया था, देयर वाज अ स्टैंड ऑफ। तो उसके बाद जो है हमारे को उन्होंने घेर दिया था, और 8 पीपल डाइड, दे कैप्चर 12 ऑफ देम। तो उसको फिर जो है इशू को जो है वो रिजॉल्व किया, वी पुल्ड आउट वहां से। लॉन्गजू इंसिडेंट से जो है हमने अपने को विड्रॉ किया, एंड वी अकॉर्डिंगली जैसा चाइनीज के साथ जो है बातचीत हुई थी, उस बातचीत के मुताबिक जो है नेगोशिएशन करके हमने अपने को रीलोकेट किया। तो एक ये लॉन्गजू में इंसिडेंट हुआ था, और एक इंसिडेंट जो है वो लद्दाख में भी हुआ था। ये इंसिडेंट जो है वहां पे एक कोंकाला पास है, कोंकाला पास में भी हमारी एक पेट्रोल गई थी, उस पेट्रोल को भी इन्होंने पकड़ लिया था। That captured the Chinese that you have again increased into our area। तो इस तरह का जो है थोड़ा बहुत जो है वो कश्मकश जो है दोनों के बीच में चलती रहती थी, बट देयर वाज नथिंग मेजर। 62 में जब हमने ये फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी, तो इन्होंने जो है उसको ऑब्जेक्ट किया, और इन्होंने ये कहा कि साहब एक ऑपरेशन जो है, जनरल कॉल जो है, उनको फिर जो है वो 4 कोर जो है उसका जो है जीओसी बना दिया गया, और उनको ये आदेश दिए गए कि आप जो है वो चाइनीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। यू विल नॉट अलाउ द चाइनीज टू कम एनी फर्दर फ्रॉम वेयर दे प्रेजेंटली आर। और अगर उन्होंने हमारा कोई भी इलाका ऑक्यूपाई कर रखा है तो उससे आप उनको बाहर खदेड़ देंगे। तो जो एक्चुअल बैटल ज्वाइन हुई थी वो हुई थी 7 ब्रिगेड के सेक्टर में। 7 ब्रिगेड का सेक्टर जो था, ये वही इलाका था जो थागला, धोला, सांगधार एरिया, लुम्पू एरिया, ये सारा का सारा खंजीमाने का जो एरिया भूटान के साथ जो बॉर्डरिंग था, ये नॉर्थ अरुणाचल का जो था, ये कामेंग डिवीजन में ये एरिया था। तो इसके कमांडर जो थे वो जनरल डलवी जो थे, ब्रिगेडियर डलवी, ब्रिगेडियर डलवी को 7 ब्रिगेड का जो है कमांडर बनाया गया था। और इनके पास उस समय जो पलटने थी, सेकेंड राजपूत थी, 19 GR थी, इसमें 9 पंजाब थी, और इनके पास 4 ग्रेनेडियर्स थी, और एक इनके पास सिख की या डोगरा की बटालियन थी। तो इनके पास 5 बटालियंस थी, और उससे इनको जो है वो ये नामकाचू रिवर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उसके ऊपर ब्रिजेस थे, लॉग ब्रिजेस। तो ये कहा गया था कि साहब ये हमारी लाइन होगी, इस लाइन को हमने डिफेंड करना है, और क्योंकि ये फास्ट फ्लोइंग रिवर है, नामकाचू रिवर, तो इसके जो ब्रिजेस हैं, अगर हम ब्रिजेस को होल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली द एनिमी विल नॉट बी एबल टू क्रॉस ओवर। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो 7 ब्रिगेड को जनरल कॉल जो 4 कोर के जीओसी थे, और उनके नीचे थी 4 डिवीजन। जो आर्मी का एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, पहले कोर होता है, उसके बाद डिवीजन होती है, उसके बाद ब्रिगेड होती है, फिर बटालियंस होती है। ये एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो जनरल कॉल जो थे वो कोर कमांडर थे। तो उन्होंने जो है जीओसी 4 डिव को और ब्रिगेडियर डलवी को ये आदेश दिए कि आप जो है अपने डिफेंसेस जो है वो नामकाचू रिवर के ऊपर जो ब्रिजेस हैं, इन ब्रिजेस को आप डिनाई करेंगे एनिमी को, और इनको आप फिजिकली होल्ड करेंगे। और इनके बीच में गैप्स थे, काफी गैप्स थे। और जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि बड़ी दिक्कतें थी, हमारे पास रोड्स नहीं थी, हमारे पास पूरा का पूरा जो है पोर्टर्स के ऊपर या म्यूल्स के ऊपर सारा का सारा आर्टिलरी हमारे पास थी नहीं वहां पे, देयर वाज हार्डली एनी आर्टिलरी व्हिच वी हैड। तो हालत जो थी वो काफी खराब थी, बट स्टिल द पॉलिटिकल लीडरशिप वाज कन्विंस्ड इन इट्स माइंड कि ये कोई लड़ाई नहीं होगी, बड़ी लड़ाई नहीं होगी।
छुटपुट इंसिडेंट्स होंगे, जैसे लॉन्गजू में या क्या कहते हैं कोंकाला में हुआ था, उस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन कोई जिस तरह से आप लड़ाई को समझते हैं, इट विल नॉट बी अ वॉर फॉट और अ बैटल फॉट ऑन दोज लाइंस. बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द 20th of October, चाइना जो है उन्होंने थागला रिज से दे रोल डाउन. थागला रिज में उनकी एक रेजिमेंट थी. रेजिमेंट का मतलब होता है एक ब्रिगेड. एक ब्रिगेड में जो है 3 से 4 बटालियन होती हैं, प्लस उसके पास आर्टिलरी का सपोर्ट होता है जो उसको मिलता है. हमारे पास आर्टिलरी के नाम पे कुछ था ही नहीं वहां. देयर वाज नथिंग. और आर्टिलरी जो है, आर्टिलरी का महत्व बताने के लिए आपको कारगिल मस्ट बी फ्रेश ऑन योर माइंड्स. आप लोग जो है इस जनरेशन के बच्चे हो, तो 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी. आपने हालांकि, आई डोंट नो इफ यू आर बोर्न एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट इसके बारे में सुना जरूर होगा आपने. तो आर्टिलरी प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल इन द बैटल ऑफ कारगिल. तो हमारे पास जो है उस तरह का कोई वेपन सिस्टम ही नहीं था वहां पे. आर्टिलरी थी नहीं बिल्कुल, सिर्फ इन्फेंट्री थी, दैट इज अबाउट ऑल. और इन्फेंट्री के पास भी बड़े लिमिटेड एमिनेशन था. लॉजिस्टिक लाइन जो थी ऐसे मेंटेन होते थे. एयरक्राफ्ट आते थे, वहां से जो है वो ड्रॉप करते थे. कुछ जो हैं वो रेविन्स के अंदर, कुछ जो हैं वो नीचे नदी के अंदर गिर जाते थे. जो कुछ भी मिलता था उसी के सहारे वो लोग जीते थे. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज आई हैव टू गेट टू नूरानांग. 20 तारीख को साहब चाइना ने रात को जो है वो हमला बोल दिया 7 ब्रिगेड के ऊपर. और इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि पूरा का पूरा जो हमारा जो फॉरवर्ड जो डिफेंसेस थे, दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द चाइनीज इन अ मैटर ऑफ 36 आवर्स. 36 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो है उन्होंने हमारे को जो है खत्म कर दिया था. फिनिश्ड. टू राजपूत, टू गिव यू अ रेफरेंस, सेकेंड राजपूत, आपने जनरल वीके सिंह के बारे में सुना होगा जो हमारे चीफ थे. तो उनकी पलटन थी सेकेंड राजपूत. ही वॉज नॉट देयर हिमसेल्फ, बट इट वॉज द बटालियन into which he was commissioned, like I was commissioned into Fort Gadwal subsequently in 71. उसी तरह से जनरल वीके सिंह जो हैं वो 69 में जो है वो सेकेंड राजपूत में कमीशन में थे. उसके बाद General वहां पे Ravi 19 Aiyar जीआर was थी. there as a second lieutenant at that time. करेक्ट करेक्ट Ravi करेक्ट. Aiyar. तो इन He was बच्चों, the Eastern हाँ Army इन, commander. I have served with him. करेक्ट, हाँ. तो इन बच्चों को नहीं मालूम होगा रवि आइब का, बट वीके सिंह प्रॉब्ली Yes, sir. बिकॉज Yes, sir. यू नो Yes. एक वो पॉलिटिकल फिगर भी थे, पॉलिटिक्स में भी थे काफी समय तक. Absolutely. फिर Absolutely. फिर उनकी एज का राव हुआ था तो बच्चों ने सुना होगा. तो दैट इज द रीजन आई गिव अ रेफरेंस ऑफ Yeah, absolutely. Yeah. वीके से. बट यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो आप ये समझिए कि विद इन 48 आवर्स टू, मतलब 72 घंटे के अंदर 7 ब्रिगेड वॉज डेसिमेटेड. The commander of 7th Brigade, Brigadier Dalby, was captured. चाइनीज का क्या था उस समय, जो एक टैक्टिक्स थी इनकी, ये जो आपको थे इनसर्कल करते थे. ये आप अपने डिफेंसेस लेके बैठे हो, जैसे मैं अभी जूम के सामने बैठा हुआ हूं अपने कैमरा के सामने, आपकी तरफ मुंह कर रखा है. वो जो है आपके पीछे से पहुंच जाते थे. अब ऑल ऑफ अ सडन यू आर टेकन बाय सरप्राइज व्हेन समबडी कम्स फ्रॉम बिहाइंड यू. तो ये चाइनीज की टैक्टिक्स थी. तो उन्होंने सामने से जिनको मारना था वो तो मारा. आर्टिलरी की शेलिंग जो है थागला रिज से, उनकी वहां पे आर्टिलरी की रेजिमेंट थी, वहां से जो है उनके ऊपर शेलिंग होती थी जबरदस्त. हमारे पास डिफेंसेस जो थे नाम के डिफेंसेस थे, क्योंकि ना तो हमारे पास स्टोर्स थे कि हम उस तरह से अपने को जो है बंकर बना सकते ओवरहेड कवर के साथ, या और जो व्यवस्था कर सकते जिससे कि हम जो है वो आर्टिलरी शेलिंग से जो है अपने को प्रोटेक्ट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था. तो चाइनीज जो है पीछे से आ गए, एंड एज अ रिजल्ट 7 ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऑल्सो कैपिचुलेटेड, एंड ऑल 9 पंजाब ये फिर तितर बितर हो गई. भूटान के रास्ते कोई निकल गया. फिर जो है 4 ग्रेनेडियर्स जो थे ये भी तितर बितर हो गए, इनका भी कुछ पता नहीं चला. तो काफी सारे लोग जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने. दे वर हेवी हेवी कैजुअलिटीज विच वर सस्टेन्ड. सेकेंड राजपूत के सीईओ जो हैं उनको जो है बहुत
आई थिंक ही प्रॉब्ली डाइड, वीर गति को प्राप्त हो गए थे. कर्नल आलूवालिया was commanding 19 GR. He also was martyred over there, killed in action, and there were so many others. It was a very, very, very sorry state of affairs. In fact, ये इन दो बटालियंस की लड़ाई के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप इनकी किताब पढ़ोगे, हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे, शिव कुणाल वर्मा की अगर आप किताब पढ़ो, द वॉर दैट वॉजंट, तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह की लड़ाई जो थी ये इन लोगों ने लड़ी. अब ये हो गया कि इट वॉज अ राउट. राउट का मतलब होता है पैर उखड़ गए आपके, तितर बितर हो गए आपके डिफेंसेस. अब उसी एरिया में होता क्या है, माउंटेन्स में आपको हाइट्स जो है ना वो डोमिनेट करनी पड़ती है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप कितना भी बड़ा फोर्स जो है अपना अगर इंडक्ट कर देंगे, जब तक उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं लॉजिस्टिकली, तो आप अपने को सस्टेन कैसे करेंगे? हाउ विल यू सस्टेन योरसेल्फ? भाई आपकी जो है वो बड़े बड़े वेपन एम्प्लेसमेंट्स आने हैं, आपका एमिनेशन आना है, आपका खाना पीना आना है, आपके स्टोर्स आने हैं, आपका मेडिकल आना है, आपके कॉम्बिनेशन आने हैं, ये सारी चीजें आनी है, तभी तो आप अपने को मेंटेन कर सकते हैं. तो जितनी आप लंबी अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे उतने आप वल्नरेबल हो जाएंगे. अब जापानीज का जो था, जब जापानीज जो हैं वो जंगल्स ऑफ बर्मा और जंगल्स ऑफ मलेशिया से जो है वो आए हमारी तरफ, दे हैड लेंथन्ड देयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. और उस समय जो है एक फोर्स जो था, उसको बड़ा फेमस फोर्स है, उसको चिंडिट्स बोलते थे. CHINDITS. तो वो चिंडिट्स जो थे वो गोरिल्लास थे. वो क्या करते थे, उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको हिट करते. और एक बार आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को उन्होंने अगर तितर बितर कर दिया, आपके पास आपके स्टोर्स नहीं आ सकते, रिसोर्सेज नहीं आ सकते, तो आप क्या करोगे? बगैर गोलियों के, बगैर खाने पीने के, बगैर कम्युनिकेशंस के, बगैर और जो आपको असला चाहिए, व्हाट विल यू डू? यू विल बी सिटिंग डक्स. तो एडवांटेज जो है वो डिफेंडर का जबरदस्त होता है माउंटेन्स में. और आपका जो अटैकिंग फोर्स है, उस अटैकिंग फोर्स में जनरली हम लोग कहते हैं कि डिफेंडर टू अटैकर का जो एक रेशियो होता है, अनुपात होता है, कि अगर एक डिफेंडर है तो वो 3 आदमियों को ले सकता है. तो दैट इज वाई ऑफेंस में आपके पास 3 टाइम्स आपके पास फोर्स होना चाहिए टू बी एबल टू ओवरवेल्म द डिफेंडर, जो कि एक के अनुपात पे है. राइट? ये एक बड़ी कॉमन सेइंग है. माउंटेन्स में बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टेरेन, ये चीज जो है ये करीब 8 से 10 गुना बढ़ जाती है. बिकॉज ऑफ द चैलेंज, आप हाइट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, आप रोड्स को डोमिनेट कर रहे हैं, आ- आप उसको ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट कर रहे हैं, आप उसको फायर से डोमिनेट कर रहे हैं. दुश्मन क्या करेगा? दुश्मन मान लीजिए क्रॉस कंट्री आ भी गया, उसकी गाड़ियां तो आएंगी सड़कों पे ना, उसका मेन जो असला है, उसका सामान जो है, जो उसको सपोर्ट करेगा, वो तो गाड़ियों में आएगा, या म्यूल ट्रेन में आएगा, या म्यूल ट्रैक में आएगा, या मैन पोर्टर किसी ना किसी तरीके से तो आएगा. आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं. यही कारगिल की कहानी है. दे वर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल्स. तो माउंटेन्स में अगर आप पहाड़ियों के ऊपर अपने को व्यवस्थित कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं डिफेंस में, तो अटैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये जो थी एक सोच थी, तो उसी सोच को ध्यान में रख करके एक मोनेस्ट्री है तवांग की, उसी एरिया में, एंड इट इज एट अ हाइट. तो जो अभी कर्नल नेहरू ने सूबेदार जोगिंदर सिंह के बारे में कहा, जिनको की परमवीर चक्र मिला था, ये 1 सिख के थे और पहलवान थे. ही वॉज अ वेरी गुड रेसलर. तो ये 1 सिख के थे, फर्स्ट सिख के. तो ये जो थे बुमला वाली एक्सेस में 1 सिख को डिप्लॉय कर रखा था. होता क्या है, जब आप डिफेंसेस लेते हो तो एनिमी को आपने जो एक्सेस है, जो उसकी रोड एक्सेस है या जो भी एक्सेस है, चाहे वो पैदल रास्ता है, चाहे वो म्यूल का रास्ता है, चाहे वो पगडंडी है, आप उसको डिनाई करते हो. और उसको आप कैसे डिनाई करोगे? फिजिकली डिनाई करोगे. उसको आप फिजिकली डिनाई करोगे बाय ऑक्यूपाइंग द हाइट्स विच डोमिनेट दैट पर्टिकुलर एक्सेस.
तो बुमला में जो थे वो 1/6 डिप्लॉयड थी। 7 ब्रिगेड जो था वो मैंने आपको बताया वो टोटली डेसिमेट हो गया, वो नमकाचू एरिया में था। ठीक है। तो अब जो है दूसरा जो था हमारा एक टैक्टिकल जो डिफेंस था वो था तवांग में। और तवांग में जो है वी वर बिल्डिंग अप। जब हमको ये थोड़ा एहसास हुआ, अक्साई चिन जब इन्होंने कैप्चर किया और इन्होंने जब वो नेशनल हाईवे बनाया जो कि सिंकियांग को और लासा को लिंक करता था, तो वी न्यू कि चाइनीज के इंटेंशंस जो हैं, दो वी ट्रस्टेड देम, पंचशील एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया था, बातचीत वगैरह चल रही थी, लेकिन वन वॉजंट वेरी श्योर। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम तो बातचीत कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इट डजेंट हैपन। क्योंकि डिप्लोमेसी जब फेल हो जाती है, बातचीत आपकी फेल हो जाती है, तो इट इज बट नेचुरल कि उसके बाद जो है आपका जो है मिलिट्री या काइनेटिक एक्शन जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो उस काइनेटिक एक्शन को मद्देनजर करके आर्मी में हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी सिचुएशन को हम लोग एसेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उसको फिर हम लोग वॉर गेम करते हैं। हम लोग का एक तरीका होता है। वॉर गेम क्या करते हैं, उसी तरह के सिनेरियो को हम रिक्रिएट करते हैं एक मॉडल में, और अपने ही आर्मी से हम जो है एक दुश्मन की साइड को नियुक्त करते हैं कि हम उनको जो है वो क्या कहते हैं डेजिग्नेट करते हैं कि भाई आप दुश्मन हो और मैं डिफेंडर हूं। अब आप बताइए कर्नल नेहरू, एज अ एनिमी अगर आपको मेरे ऊपर हमला करना है तो आप किस तरह की योजना या प्लान बनाएंगे? तो व्हेन वी हैव दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, दीज टाइप ऑफ मॉडल्स, तो हम लोगों का भी जो है एक ऑपरेशनल प्लान बना था कि हम अपने इस एरिया को कैसे डिफेंड करेंगे। क्योंकि इफ यू हैव टू स्टॉप एन एनिमी विच इज कमिंग इनटू योर टेरिटरी, यू कैन ओनली डिनाई हिम at the places which are most suitable to you। आपके सुविधाजनक होनी चाहिए। एक बार अगर वो पहाड़ों से नीचे उतर गया, तभी तो हम हिमालयस को जो है एक बैरियर समझते थे, टिल 62 हैपेंड। वी थॉट हिमालयस आर बैरियर्स, इससे तो कोई आ ही नहीं सकता है। पर ये एक मिथक था, इट वॉज अ मिथ। द चाइनीज केम। सो देर आफ्टर जब हमने ये वॉर गेमिंग करी उस एरिया के लिए, नेफा के एरिया के लिए, तो उसमें यह था कि हम इस तरह से हाइट्स को जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, उसको बैटल देंगे, उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को एक्सटेंड करेंगे, और जब वो स्ट्रेच हो जाएगा, जब वो अपने मेन लैंड चाइना या तिब्बत से स्ट्रेच होके हमारे पास आ जाएगा, देन वी विल हिट हिम, because he will be at his most vulnerable at that point in time. So, as a part of that larger operational strategy और tactics, हमने जो है वो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ बैटल था, वो तोवांग की हाइट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करी थी कि वी विल नाउ फाइट हिम हियर। एक बार हमने बुमला में और उसको जो है हमने नमकाचू के एरिया में जो है उसको हम नहीं रोक सके, वो अंदर आ गया, तो नेक्स्ट बैटल विल स्टेज इन द एरिया ऑफ तवांग। तो तवांग में जबरदस्त बिल्डअप हो रहा था, और तवांग का पूरा जो है हमारा बैटल प्लान जो था वो तैयार था। अब जब ये 7 ब्रिगेड की जब घटना हुई, इट लिटरली जिसको बोलते हैं कि हिंदुस्तान फौज के पैर उखड़ गए। यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक तो आपको कंटिन्यूअसली ये कहा जा रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। आप इल इक्विप्ड हो, आपके पास विंटर क्लोथिंग नहीं है, आपके पास जूते नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है। चाइनीज के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं, आपके पास ली एनफील्ड वाली बोल्ट एक्शन 303 राइफल है। ठंडा इतना होता है, बारिश पड़ती है, बढ़ती है, आर्टिलरी आपके पास नहीं है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास नहीं। मतलब हर चीज जो है उसकी अभावना है, उसकी कमी है, अभाव है उसका। और आप जो है फिर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वो रोड बना करके आपके जहां जहां भी जा रहा है वो रोड बना रहा है, उसके इंजीनियर्स जो हैं वो पीछे पीछे उसके आ रहे हैं और वो अपनी रोड को बना रहे हैं। दिस वॉज देयर एबिलिटी, उनकी ये काबिलियत थी। तो ये हुआ था कि तवांग में हम उनको
फाइट देंगे। लेकिन जब ये 7th ब्रिगेड उखड़ गई तो फिर खलबली मच गई। अब ये हुआ कि चाइनीज की टैक्टिक्स जो है कि ये तो जो है, दे डोंट फाइट यू, दे एनसर्कल यू। ये बाईपास करके तुमको जो है, तुम्हारे को हिट करते हैं, तुम्हारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको ये काट देते हैं। अब आप इनके ही जो है वो शिकंजे में फंस गए। अब आप सोचिए। तो ये एक, जिसको कहते हैं खौफ जो है, ये हमारे जो है, जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में ये खौफ जो है चाइना ने पैदा कर दिया। तो इमिजिएटली जो है हमारे सीनियर कमांडर जो थे, चाहे वो जनरल कॉल रहे हों, चाहे वो जनरल बोगी सेन रहे हों, चाहे वो हमारे चीफ रहे हों, जनरल थापर रहे हों, ये सब जो है इनके मन में ये बात जो है, एक खौफ जो है पैदा हुआ। और इन्होंने कहा कि भाई, तवांग ऑल्सो कैन बी बाईपास। हम जितना ज्यादा फोर्स यहां डिप्लॉय करेंगे, चाइनीज उसको काट के, जिस तरह से 7 ब्रिगेड को इन्होंने जो है प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया, उसी तरह से ये पूरी हमारी जो आर्मी यहां डिप्लॉय हो रखी है, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको भी जो है ये प्रिजनर ऑफ वॉर बना देंगे। तो ये एक थॉट जो है दिमाग में आ गई। तो इन्होंने कहा कि हम इनको यहां पे भी नहीं लड़ेंगे। तवांग वॉज गिवन अप विदाउट अ फाइट, दो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट इन तवांग। हमारे डिफेंसेस कोऑर्डिनेटेड थे। हमने वहां पे जो है, जिस तरह की डिफेंस की योजना बनती है, आप उसमें माइंस लगाते हैं, आप उसमें वायर ऑब्स्टिकल्स लगाते हैं, आप अपनी जो है वो लोकेलिटीज की जो है वो फायर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, आप ये इंश्योर करते हैं कि यू आर इन म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ ईच अदर, ताकि दुश्मन जो है वो गैप से जो है ना घुस सके हमारी दो लोकेलिटीज के बीच में। तो ये सब बातें जो हैं, इसके मद्देनजर उनके मन के अंदर दहशत सी पैदा हो गई, घबराहट सी पैदा हो गई, और वो वहां से उन्होंने कहा वी विल नॉट फाइट हिम हियर, वी विल फाइट हिम इन सेला। अब सेला जो थी वो एक और हाइट थी। अगर आपने ये पिक्चर देखी है सैम बहादुर, हाँ, मेघना गुलजार की, तो उसमें है, आपने देखा होगा कि सैम मैनेक्शॉ जब प्रमोट होकर के यहाँ के कोर कमांडर आए, he was a commandant of staff college in Wellington, he got promoted subsequently and replaced General Call as the GOC of 4 Corps। तो वो जो है सेला में आए थे। तो अब ये हुआ साहब कि यहां से भी छोड़ो और सेला में डिफेंसेस बनेंगे। अब ये ऑल ऑफ अ सडन ये एक इम्प्रॉम्प्टू थॉट था, विच डिक्टेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द बैटल। पहले सेला नहीं था, पहले यह था कि तवांग में हम उसको लड़ेंगे, वी विल स्टॉप हिम हियर एंड ब्लडी फाइट हिम हियर। ऑल ऑफ अ सडन जब ये भय और ये दहशत जो है मन के अंदर आ गई कि यार ये तो जो है बाईपास कर लेते हैं, ये तो जो है एंगेज करते नहीं है, बाईपास करके और आपको घेर लेते हैं पीछे से, एंड देन दे विल अटैक यू फ्रॉम बिहाइंड, कट ऑफ योर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, देन यू आर देयर इन देयर बैग, इनकी झोली में आप फंस जाओगे। तो फिर ये हुआ कि सेना में जो है हमको डिफेंसेस बनाने। अब ये भगदड़ मच गई। तो हमने जो ट्रुप्स इंडक्ट भी किए बाहर से, या जो ट्रुप्स हमारे बिल्डअप हो रहे थे, उनको ये आदेश हुआ कि सेना में डिफेंसेस जो है तैयार किए जाएंगे। अब जब आप मेन डिफेंसेस तैयार करते हो बेटा, तो उसमें एक हम लोगों का तरीका होता है जिसमें कि हम बोलते हैं कवरिंग ट्रुप्स। अब ये क्या होते हैं ट्रुप्स? ये कवरिंग ट्रुप्स वो होते हैं जो कि हमारे मेन डिफेंसेस से पहले हम डिप्लॉय करते हैं, ताकि एनिमी बिफोर आर डिफेंसेस आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी, कहीं वो एनिमी वहां ना पहुंच जाए उससे पहले ही। जब हमारे डिफेंसेस ही तैयार नहीं हुए हैं, कोऑर्डिनेट ही नहीं हुए हैं, तो अगर एनिमी वहां पे पहुंच गया, उसने कंटैक्ट अगर एस्टेब्लिश कर लिया हमारे साथ, तो आप सोचिए व्हाट बैटल आर यू गोइंग टू गिव हिम। भाई, डिफेंसिव बैटल जो है ये तो आपकी रणनीति और आपकी सोच के मुताबिक है कि हम इसको यहां मारेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कवरिंग ट्रुप्स जो हैं उनको डिप्लॉय करते हैं, जो कि आगे जो है डिफेंसिव बैटल के तौर पे, बट ये नहीं कि लास्ट मैन लास्ट राउंड तक तुम यहां पे लड़ोगे। ये होता है इनको डिले करो, गिव टाइम टू अस टू प्रिपेयर आवर डिफेंसेस। आप जितना ज्यादा एनिमी के
जो एडवांसिंग ट्रुप्स होते हैं उनको डिले कर सकते हो, उतना अच्छा हमारे मेन डिफेंसेस के लिए होता है। उसको हम कवरिंग ट्रुप एक्शन बोलते हैं। फोर्ट गढ़वाल was raised in 1959 on the 7th of December। आप सोचिए। और हमारे उस समय जो इसके सीओ थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद मेहदी हसन थे। एंड इट वाज रेज्ड इन हैदराबाद। और हैदराबाद में जब ये रेजिंग कंप्लीट हो गई थी, देन दे केम टू रामगढ़। और रामगढ़ में जब ये सिचुएशन हुई 62 की, दे वर इमीडिएटली मूव फ्रॉम देयर, क्योंकि जो भी ट्रुप्स आपके नियर बाय हैं, जिनको आप इजिली जो है आप उनको जो है एरिया ऑफ एक्शन में या जोन ऑफ एक्शन में आप उनको इंडक्ट कर सकते हैं, आप उनको बोलेंगे। तो फोर्ट गढ़वाल वाज अ पार्ट ऑफ 62 ब्रिगेड। 62 ब्रिगेड के जो थे कमांडर उस समय जो थे, इट वाज इनफैक्ट initially as a RT brigade. Then we came to 62 Brigade, and Brigadier Hoshiar Singh, who was Deputy Commandant of the National Defense Academy in the rank of a full colonel. He was, अब खलबली ये मची कि भाई हमको जो है कोई बैटल हार्डन्ड, कोई सीजन्ड हमको जो है कमांडर चाहिए, जो कि सिचुएशन को जो है उसको जो है वो रेस्टोर कर सकते हैं, who can restore the situation. What do you require for that? You require people who've got experience, जिनको तजुर्बा है। तो होशियार सिंह के पास जो है, इनके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बड़ा अच्छा तजुर्बा था। He had experience. He had seen war in Burma. तो इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर दैट अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर विश्वास जताता है, he was picked up from there and he was brought there as an infantry brigade commander of 62 brigade। उसका हिस्सा फोर्ट गढ़वाल राइफल्स थी। फोर्ट गढ़वाल राइफल्स को यह कहा गया कि आप जो ये रास्ता जो आ रहा है, जिस रास्ते पे बुमला से, जो बुमला की जो एक्सेस है और जो नमकाचू वाली एक्सेस है इस एरिया की, ये एक्सेस जो थी ये कन्वर्ज करती थी। एंड दिस यूज्ड टू कम टूवर्ड्स अ विलेज बाय द नेम ऑफ जंग, JANG। और उसके बाद इट यूज्ड टू कम अप टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, अगेन अ विलेज बाय द नेम ऑफ नूरानांग। और नूरानांग से फिर वो रास्ता जो है वो जाता था सेला की तरफ। तो सेला पहुंचने से पहले एनिमी के ऊपर डिले करने के लिए फोर्ट गढ़वाल राइफल्स को डिप्लॉय किया गया था इन अ डिफेंसिव लोकेशन, इन अ डिफेंसिव डिस्पोजिशन। एक डिफेंडेड एरिया के तौर पे, बटालियन डिफेंडेड एरिया के तौर पे उसकी 4 जो कंपनीज थी, राइफल कंपनी जो थी, उनको आपने अस्ट्राइड दी एक्सेस, अस्ट्राइड दी एक्सेस आपने उनको डिप्लॉय कर रखा। और सबसे पहली जो कंपनी थी वो थी अल्फा कंपनी। अल्फा कंपनी थी, एक सड़क आ रही थी। एक कंपनी हमारी जो थी वो ऑलरेडी जो है लॉन्ग रेंज पेट्रोल में गई हुई थी। इट वॉज नॉट अवेलेबल टू दी कमांडिंग ऑफिसर। उस समय हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते थे लेफ्टिनेंट कर्नल BM भट्टाचार्य। ही वॉज द सीओ। पलटन जो है वो 3 साल जो है, मतलब आप सोचिए 59 में तो 60, 61 और 62 में लड़ाई होगी, तो 2.5 साल की पलटन की उम्र थी कुल। और हसन साहब जो हैं वो चले गए थे पोस्टिंग, ही हैड गॉन टू स्टाफ कॉलेज एज इंस्ट्रक्टर। एंड नेक्स्ट सीओ वाज कर्नल BM भट्टाचार्य फ्रॉम फर्स्ट गढ़वाल। वो फर्स्ट गढ़वाल के थे, वो फर्स्ट गढ़वाल से हमारी पलटन को आए कमांड करने के लिए, और immediately we were inducted and we became a part. So we were deployed astride the axis जंग से जो नूरानांग, और नूरानांग से जो उसके बाद आपकी सेला की जो एक्सेस थी, उस एक्सेस को डिनाई करने के लिए एज कवरिंग ट्रुप्स वी वर डिप्लॉयड। हमको जिम्मेदारी दी गई। अब 17 नवंबर को हमारी कंपनी के जो उस समय कंपनी कमांडर थे वो सेकंड लेफ्टिनेंट SN टंडन थे। ही वॉज द कंपनी कमांडर। अब सुबह 17 तारीख को साहब सवेरे के 6 बजे चाइनीज का अटैक हमारे इस कंपनी के ऊपर आया, अल्फा कंपनी के ऊपर।
अब चाइनीज का एक, इन लोगों ने एक टेक्निक थी इनकी, एक इनकी ड्रिल थी अटैक की, जिसमें ये वेव्स में आते थे, लहरों में। इट वॉज नोन एज दी वेव टैक्टिक्स ऑफ अटैक। एक लहर आई, उसके पीछे दूसरी लहर आई, उसके पीछे तीसरी लहर आई, मतलब लहरों की कमी नहीं थी, मैन पावर इतनी थी इनके पास। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो इनकी थी, पीएलए जो थी, उसमें जबरदस्त पेजेंट फोर्स, हार्डन्ड, बिकॉज इनकी जो पीपल्स वॉर थी अगेंस्ट द रेजीम, जो मैंने आपको बोला, को मिनतांग चेंकाई शेक की जो रेजीम थी, उसके खिलाफ जब ये कम्युनिज्म पीपल्स अपराइजिंग हुई थी, तो ये पेजेंट्स जो थे, पीपल मोस्टली, इनकी अपराइजिंग थी, तो ये लोग भी जिसको कहते हैं हार्डन्ड थे, दे वर हार्डन्ड, दे वर नॉट लाइक द प्रेजेंट पीएलए। आज की तारीख की प्रेजेंट पीएलए इज क्वाइट अकिन टू व्हाट the armies all over the world are, because youth is being exposed to technology, youth is being exposed to better education, they are getting empowered by technology, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हार्डीनेस जो है वो धीरे धीरे करेक्टिवली वो कम हो रही है। तो ये लोग जो थे, इनको मरने की चिंता ही नहीं थी, इनकी टैक्टिक ये थी कि तुम एक वेव के बाद। तो 6 बजे सवेरे साहब अल्फा कंपनी के ऊपर ये हमला आया, और इन्होंने जो है अपने मशीन गन्स और अपनी जो है मोटर्स, उनसे शेलिंग करें। अच्छा, अब जो कवरिंग ट्रूप के डिफेंसेस होते हैं, ये बड़े टेम्पररी होते हैं, दे आर टेम्पररी, बिकॉज यू नॉट गोइंग टू स्टे देयर। आपने कोई परमानेंटली तो वहां पे रहना नहीं है। आपके लिए क्या होता है कि जो मेन डिफेंसेस होते हैं, वहां पे बटालियन को जो होती हैं वहां पे आपके पास अवेलेबल एज रिजर्व्स, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि जब आपका कवरिंग ट्रुप का एक्शन खत्म हो जाएगा, आप फॉल बैक करके फलानी फलानी जगह में मेन डिफेंसेस को सेला में ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़े टेम्परेरी डिफेंसेस होते हैं, कोई ओवरहेड कवर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बड़ा ट्रेडी किस्म का होता है। आपके पास डिफेंस स्टोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं वहां पे। तो आपने सिर्फ मोर्चा संगड़ बना करके, संगड़, संगड़ क्या होता है? पत्थर के संगड़ होते हैं, ताकि आप कम से कम डायरेक्ट जो बुलेट आ रही है स्मॉल आर्म्स की, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, दैट इज ऑल। ओवरहेड प्रोटेक्शन आपके पास नहीं होता है। You may have a shelter, but it is not a protection against any artillery or overhead fire. तो साहब ये हमला हमारे ऊपर आया। अब इन्होंने जो है वो जबरदस्त, मतलब आप समझिए कि उसमें लड़ाई हुई, एंड द अटैक फेल्ड, चाइनीज का। अब चाइनीज के लिए बेटा ये बहुत जरूरी था कि ये एक्सेस जो है, अगर इफ दे हैड एनी फ्यूचर एम्बिशंस टू कम डीप, they had to open this access. इस एक्सेस को खोले बगैर उनका जो अटैक ट्रुप्स थे, चाहे वो बाईपास करते हुए जाएं, चाहे किसी तरीके से भी जाएं, उनको मेंटेन कैसे करोगे जब तक आपके पास रोड एक्सेस नहीं खुलेगी? तो ये एक्सेस उनके लिए बहुत जरूरी थे, जिसके ऊपर 4 गढ़वाल बैठी हुई थी। अब फर्स्ट अटैक जो है इनका फेल हो गया। चलो, उसके बाद जो है विद इन अबाउट 3 आवर्स टाइम, सेकेंड वेव, जबरदस्त लड़ाई उसमें, नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी विद अस, एंड चाइना की साइड में देयर वर मेनी मेनी बॉडीज विच वर लाइंग स्ट्रून, चाइनीज की। पर ये रुकने वाले नहीं थे, बिकॉज इनके लिए जो है ये तो बड़ा जरूरी था, इट वॉज ए इम्पेरेटिव कि हमने इस सड़क को खोलने के लिए, ये जो कंपनी है जो हमको डिनाई कर रही है, इसको हमने यहां से निकालना है। वी हैव टू ओवररन देम, वी हैव टू ओवररन देम। अब इन्होंने जो है फिर कहा कि हमको इस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से ये अटैक कर रहे थे, उस डायरेक्शन से इनको जब सक्सेस नहीं मिला सेकेंड वेव के बाद भी, तो इन्होंने फिर जो है सोचा कि हम जो है दूसरे डायरेक्शन से इसको, कंपनी को जो है हम अटैक करेंगे। उसके लिए ये लोग जो हैं वो अपनी एक
मीडियम मशीन गन को लेकर के और इन्होंने उसको इम्प्लेस किया, उसको एक इम्प्लेसमेंट बना करके रखा ताकि हमारे ऊपर इतनी जबरदस्त ऑटोमेटिक फायर लेके आएंगे कि इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस एंड दे विल इन्फ्लिक्ट द मैक्सिमम कैजुअलिटीज अपॉन अस. दिस इज द टाइम यहां पर जो है वो जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह, तीरथ सिंह, ये हमारे जो थे सोल्जर्स थे. और जसवंत वॉज अ यंग राइफलमैन, आई थिंक 20 या 21 साल का एक यंग राइफलमैन था. अब जब इन लोगों ने ये देखा कि ये मशीन गन इज प्लेइंग हैवॉक इनटू आवर डिफेंसेस, हमारे लोग जो हैं अटैकिंग एनिमी के ऊपर बाहर निकल करके, बिकॉज दुश्मन के एंड डे टाइम में, सब कुछ, ये नाइट टाइम नहीं है, दिस इज डे टाइम, सब कुछ दिख रहा है. तो अब वो बाहर ही नहीं निकल सकते. जैसे बाहर निकले, यू कम अंडर दी ऑटोमेटिक फायर. ये तो ऑटोमेटिक फायर तो ऐसा आता है ना जैसे कि एक होस पाइप से पानी निकल रहा हो, मतलब ऐसे घुमाया आपने एंड इट कवर्स एवरीवन. हर एक को जो है वो ढक देता है, उसके ऊपर पानी डाल देता है. तो ये बहुत बड़ी अड़चन बन रही थी. तो वहां के जो उस समय प्लेटून कमांडर थे, उन्होंने कहा कि इस मशीन गन को जो है, मीडियम मशीन गन को जो है, इसको जो है हमको खत्म करना है. वी हैव टू रेडी somehow or the other silence the crew which is operating this medium machine gun, because otherwise we are seriously threatened by the enemy. अब ये थर्ड वेव के अटैक की बात कर रहा हूं मैं आपसे. अब साहब जसवंत और ये क्या कहते हैं त्रिलोक, ये जो हैं और इनके साथ एक और लड़का था, ये अपने संघर्ष से निकले एंड उस पहाड़ी में, पत्थर में ये क्रॉल कर करके, और आप सोचिए दिन के उजाले में, कोई रात का अंधेरा नहीं है. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, बट एनी हाउ they crawled and they literally reached the gun emplacement undiscovered. और इन्होंने फिर वहां पहुंच करके जो है उसके अंदर जो है ग्रेनेड लॉब किया. और जसवंत ने जो है वो मशीन गन, अच्छा होता क्या है जब वेपन फायर करता है ना कंटिन्यूसली, तो बैरल ऐसी हो जाती है उसकी जैसे कि लोहा जो है आपने भट्टी के अंदर डाल रखा. It's firing at such a rapid rate. So that iron, इसने बैरल पकड़ के नंगे हाथ से, he very pulled it out from the emplacement. Pulled it out from the emplacement. And ये जो तीन लड़के थे, ये जो हैं, ये जसवंत को कवरिंग फायर दे रहे थे, जो बाकी दो लड़के थे उसके साथ वाले. और जसवंत जो था, he pulled the weapon from the Chinese. And while he was pulling it, in the process, he got shot in the head. इसको जो है किसी और ने, बिकॉज इट वॉज विजिबल, किसी और ने इसके सर पे गोली मारी एंड जसवंत इमीडिएटली, बिकॉज ऑब्वियसली अ हेड इंजरी. बट एनी हाउ ही, जो उसके साथ में थे दो लड़के और, उन्होंने मशीन गन को भी, जसवंत को भी, दे डिडंट लीव हिम देयर, दे पुल्ड हिम बैक, दे ब्रॉट हिम टू द डिफेंसेस. बट बाय द टाइम Jaswant came back to the defenses, he had died with excessive bleeding. So, third attack also failed. अब साहब शाम के 5 बजे चौथा अटैक. बट बाय देन लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी, इतना जोश बढ़ गया था. We repulsed 4 attacks. Can you imagine? One single company, Alpha company, of 4 Garwad rifles. And this is all happening on the 17th of November, 1962. ताबड़तोड़ गोलियां चल रही. In the end, there were approximately about 300 to 400 Chinese who had been killed. They had been killed by this, and the total injuries sustained or the kill as far as Fort Garhwal was concerned was just 3. हमारे 3 लड़के सिर्फ killed in action हुए थे और चाइनीज के
300 से लेके 350 से लेके 400 लोग. So one company resisting 4 bloody wave attacks and killing over 350 to 400 Chinese. Ab, as a consequence of this khalbali, imagine what a staunch fight we had given. अब because कुछ ऐसा जो है जिसको बोलते हैं कि प्री कंसीव्ड जो है दिमाग के अंदर ये बात थी, 62 ब्रिगेड होशियार सिंह की ब्रिगेड को आदेश मिले कि आप विड्रॉ करिए टू फॉल बैक टू सेला. अरे यार, पीपल आर सेइंग कि भैया तुम क्या कर रहे हो, व्हेन दे हैव बीन एबल टू रेडी डिफीट द अटैक ऑफ द पीएलए, व्हाई आर यू पुलिंग देम आउट? दे आर सो वेरी एसेंशियल टू स्टॉल द चाइनीज फ्रॉम एडवांसिंग एनी फर्दर. दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, एंड दिस इज जस्ट वन कंपनी जिसको एंगेज किया था. बाकी कंपनी तो एंगेज भी नहीं हुई थी. बट इस तरह की खलबली पहुंच गई थी. द चीफ, द कोर कमांडर, द आर्मी कमांडर, द डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस Monty Palit, they were all there in Tezpur, which was the headquarters of 4 Corps. There was so much of uncertainty. They said no, we'll fight there. वो बेचारा डीएमओ जो है, जनरल पालित जो है, ब्रिगेडियर पालित उस समय, वो कह रहा है कि यार तुम इनको क्यों कर रहे हो? Why are you calling them back when they've been able to? They said no, we have to give the fight to the Chinese in Sela. Sela is our main this thing. तो सेला में भी जो है खलबली मची हुई है. वहां पे जनरल पठानिया थे, 4 डिव के जीओसी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, सेला नहीं, हमको जो है और पीछे जो है वो वहां पे जो है हम उनको लड़ाई देंगे, बिकॉज सेला विल गेट बाईपास. ये बाईपास का जो था ना एक भूत, ये सबको ऐसा इसने ग्रस्त कर दिया था, ऐसा पकड़ लिया था. इन्होंने कहा ये हमको बाईपास कर देंगे एंड दे विल रीच द प्लेन्स ऑफ असम. So if we have to stop them, we have to stop them at the place from where they cannot bypass us. और सेला में भी तैयारी हो गई थी कि साहब हम इनको जो है वो पीछे कर देंगे, विड्रॉ कर लेंगे सेला से. वो तो ये 17 की घटना है. 21 तारीख को जैसा आपको कर्नल नेहरू ने बताया, चाइनीज ने अपना एम जो है, दे वांटेड टू टीच इंडिया अ लेसन कि बेटा हमारे साथ पंगा मत लेना, डोंट शो अस योर आईज. ये जो है ना तुम्हारा कि वी विल थ्रो द चाइनीज आउट, ये हमारे साथ नहीं चलेगा. नेगोशिएट कर लो हमारे साथ. वी कुड हैव प्लेड मेरी हेल. हमारे कई जनरल्स थे जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ये सोचा था कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू फाइट द चाइनीज इन डिटेल. प्लान कर रखा था कि इनको अंदर आने दो, लेट देम कम, और जब ये यहां पहुंच जाएंगे इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेच हो जाएंगी, जैसा मैंने पहले कहा था, वी विल हिट देम देन. तो जसवंत को फिर इसके लिए जो है पॉस्टुमस जो है, जैसा आपको बताया, महावीर चक्र दिया गया था. एंड फिर उसके बाद जसवंत के जो है कई मिथ्स हैं. ये एक जो है आपको बताया कि नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल सब्सिक्वेंटली दे सेड कि हम जो है बिकॉज ऑफ द गैलेंट एक्शन ऑफ दिस बॉय जसवंत who saved the day for India, we want to name the village as Jaswantgarh. तो नूरानांग से उसका नाम जो है जसवंतगढ़ बना. सड़क के बगल में जो है एक मेमोरियल जो है उनके लिए जो है एक धाम जो है बनाया गया है. जसवंत हैज नाउ अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अ बाबा. उनको बाबा जसवंत के नाम से जाना जाता है. उस मंदिर के अंदर उनका बिस्तरा लगता है, उनके जूते हैं, उनकी वर्दी है, उनका जो है वो खाना आता है, उनका जो है जूते पॉलिश किए जाते हैं, वर्दी उनकी जो है वो लगाई जाती है हर दिन. और ये कहा जाता है कि कोई भी संतरी जब रहता है ड्यूटी पे, अगर उसको नींद आती है तो जसवंत बाबा आते हैं और उसको जो है सतर्क करते हैं कि अपनी ड्यूटी पे सो मत. तो दीज आर द मिथ्स व्हिच ओवर अ पीरियड, ये हमारी रेजिमेंटल हिस्ट्री की जो किताब है उसमें ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ये एक लोगों की मान्यता है, ये एक मिथक है. इसके ऊपर जो है पिक्चर भी बनी थी. उस पिक्चर में
भी यही दिखाया गया है कि जसवंत ने सिंगल हैंडेडली ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। वो बातें सारी की सारी, थोड़ा बहुत जो है वो सिनेमैटिक लिबर्टी होती है डायरेक्टर के पास, तो उस सिनेमैटिक लिबर्टी का उसने जो है वो इस्तेमाल करके थोड़ा एग्जैजरेशन होता ही है। लेकिन जो सच्ची बात है वो मैं, फिर जब हम लोगों को विड्रॉल के ऑर्डर्स मिले ना, आप देखिए, लुक एट द आयरनी, यहां हम अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, रेडी डिफाइंग द चाइनीज, नाउ वी गॉट ऑर्डर्स ऑफ अपस्टिक फ्रॉम देयर एंड मूव टू सेला। जब हम जा रहे थे, चाइनीज ने इनसर्कल करके हमारे को जो है एम्बुश कर दिया। सो वी लॉस्ट ओनली 3 people देयर, बट हमारे 135 लोग, when we were coming back, falling back, because the Chinese had again encircled, इन्होंने हमको prisoner of war बना दिया था, 135 people of us। तो ये बड़ा ही मतलब, जितना हमको नुकसान वहां नहीं हुआ, उतना हमको नुकसान जो है विड्रॉल के टाइम पे, बिकॉज विड्रॉल में तो यू आर मूविंग ना, यू आर वल्नरेबल, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नोबडी हु इज कवरिंग योर विड्रॉल। आप अपने आप इंडिपेंडेंटली जो है पीछे जा रहे हो, वहां पे चाइनीज बैठ, जहां आप जाओ वहां पे आपको चाइनीज जो है कमांड कर रहे हैं। तो हमारी इतनी डेथ्स हुई वहां पे, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, वी लॉस्ट अबाउट 4 to 5 ऑफिसर्स, वी लॉस्ट आवर आरएमओ, वी लॉस्ट आवर जेसीओज, वी लॉस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो हमने सफर करी, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 100 कैजुअलिटीज, वो हमने विड्रॉल के टाइम पे जब हमको ऑर्डर मिले, वी डिडंट वांट टू विड्रॉ, बट आदेश, our CEO, Colonel Bhattacharya, he also became a prisoner of war. बिकॉज जिस रास्ते से हम विड्रॉ कर रहे हैं वहां पे चाइनीज पहुंचे हुए, दे आर देयर। सो इन शॉर्ट बच्चों, ये मैंने आपको अपनी बटालियन का एक्शन बताया है रणांका। तो इसके ऊपर अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो ये एज एज अ स्टोरी मैंने आपको बताया है, मैंने ज्यादा आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है उनके ऊपर तवज्जो नहीं दिया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट मोटे तौर पे आपको बताया कि इट वाज अ गैलेंट एक्शन। जनरल ब्रिजमोहन कॉल जो थे, 4 कोर कमांडर, to a very large extent he is supposed to be the culprit who was responsible for this situation which happened in the war of 1962। तो उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी। जनरली होता है कि जब कोई इस तरह की घटना होती है तो आदमी अपने को जो है वो विंडिकेट करने के लिए, या ये बताने के लिए कि भाई मेरे ऊपर सारा का सारा जो है दोष मत डालो, गलती मेरी नहीं थी, इस गलती में बहुत सारे लोग शामिल थे, मैं तो सही कर रहा था, मेरी सोच तो ठीक थी, मैं वो नहीं हूं जिस चीज का आप मुझे जो है वो इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। तो ही रोट अ बुक बाय द नेम ऑफ अनटोल्ड स्टोरी। तो उस अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने जो है वो लिखा है कि हैड द इंडियन आर्मी फॉट लाइक 4 गढ़वाल राइफल्स, द हिस्ट्री ऑफ द 1962 वॉर वुड हैव बीन डिफरेंट। व्हाट ही मेंट वाज कि देयर वाज अ राउट, कंप्लीट राउट, पैर उखड़ गए, जिसको कहते हैं ना पैर उखड़ गए, घबरा गए लोग, जनरलशिप फेल्ड। पहले क्या हुआ, द पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्ड, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वो सही नहीं हुआ। उसके बाद जब जनरल्स को टेक ओवर, फिर पंडित जी ने ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो जनरलशिप को हैंड ओवर कर दी कि भैया ठीक है, दिस इज योर डोमेन, आप लोग करो जो करना है। बट देयर ऑल्सो वी फेल्ड, वी फेल्ड एज द चीफ, द आर्मी कमांडर। ईस्टर्न आर्मी कमांड का जो एक्चुअली कमांड था, जो लड़ाई लड़ रहा था, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होता था। इसके बाद जो है आप देखिए, जो 65 की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने यही समझा आयूब खान के नीचे कि यार ये तो बैटर्ड आर्मी है, पिटी हुई है बुरी तरह से 62 में, 65 में इसको जो है हम कश्मीर, जो हमारा मकसद है, मुद्दा है, उसको हम हासिल कर लें। We will be able to, because it is a bruised and battered and a humiliated army, we'll be able to get the better of them. But then in these 2 years, ये जो इंटरजनम था, ये इन बिटवीन पीरियड था, इसमें हमने जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग करी। वी आर स्ट्रेंथ देन जम्प फ्रॉम 3.5 to 1 million, 3.5 lakhs to 1 million, 10 लाख हमारी आर्मी बनी। इक्विपमेंट आया, रशिया से इक्विपमेंट आया, अमेरिका से इक्विपमेंट आया, बहुत सब सब कुछ। तब जाकर के जो है वी वर इन अ पोजिशन 65 में, पाकिस्तान को जो है वी कुड गिव देम अ बिफिटिंग चैलेंज, अ बिफिटिंग रिप्लाई टू देयर
evil intentions. तो ये बच्चों मोटे तौर पे जो है नूरनांग की बैटल की कहानी है. अगर आपके इसके बारे में कुछ भी अगर सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए. यू आर मोस्ट वेलकम.